Jamshed Mahmood Raza, popularly known as Jami, is a film director from Karachi, Pakistan. He studied film at the Art Center, College of Design in Pasadena in the United States. In 1998, he returned to his home, Karachi, and formed a production company, Azad Film. Music director Jami's directorial debut, Pal Do Pal, changed the landscape of music videos in Pakistan. Since then, he has done numerous award-winning, critically acclaimed videos for pop bands and singers, including Strings, Atif Aslam, Ali Zafar, Fusion, Shafaqat Amanat Ali Khan, Ali Azmat, and Hadika Kayani. Commercials, Jami ventured into commercials into 2002, and then there too carved a niche for him, making high-impact ad films for some of the biggest brands in the country, including Unilever, P&G, Nokia, Tang, Nestle, Sony Ericsson, Motorola, and Standard Chartered Bank, among many others. A strong portfolio spanning many styles, genres, and techniques. Jami is a believer in purity and simplicity. His films are a reflection of his personality, sensitivity, clear, cutting edge, experimental, creative, and soulful, elevating reality to art. Friends, with Jami, we have also been joined by Mr. Shabbir Rana, an actor from Pakistan who played Zahir's role in his film Moor. So we'll speak to him as well. Jami, to start with you, I want to ask you something. There are moments in history when a masterpiece is created. Leonardo da Vinci created Mona Lisa or The Last Supper. Our Gurudev Rabindranath Tagore wrote Gitanjali for his for which he won Nobel Prize. Or Satyajit Ray created Pather Panchali and other great films. Akira Kurosawa created Seven Samurai, Rashomon, and other great films. When you started making Moor or conceived Moor, did you ever thought that this film will stand in the league of those masterpieces in the history of cinema making? Okay, sir. This is, I don't know how to explain this, but thank you so much for this introduction and for the film. But to be very honest, I still think these are master strokes. What you explained from Pather Panchali to so I don't consider my film to be up there. But I'll be very honest. When we were making it, we were feeling that we are doing something great. The process was beautiful, and so I agree that our hearts and minds were there with the masters, but it was a very humbling experience because it was just too tough. Then that's when we realized it's making a film like this. It's not that easy. Because after that, I've done another film. It wasn't the same process, but doing more just made us realize that some films are very, very special. Yes. Shabbir Rana साहब, I want to ask you, आप उर्दू में भी जवाब दे सकते हैं. जब जामी ने आपको अप्रोच किया, when he approached you with the idea, concept, did you ever thought that it's going to be a masterpiece? Because when we see the film, each frame is like a piece of art, and we see you people as a character, moving characters in a painting. That's what it appears to us. So did you ever thought when you starting working on this film that this is really going to be of that, this work going to be of that caliber? Shabbir साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही. शब्बीर साहब, आवाज नहीं आ रही. आप हेडफोन लगा लें अगर है तो. शब्बीर साहब का म्यूट, maybe is mute पे लगा हुआ है. He is not mute because he's not seen mute, but आप ear plug लगा लें अगर. Let me take over till he. Yeah. Yes. Let me explain how this whole thing was created. Me and Shabbir Saab did a commercial for a mobile phone ad.
And that's when he realized, I just love this character, this man who lives in his house and does nothing, and he does something very special during the Ramazan. Na? He sees some young kids with no food, so he shares. That was the ad for 30 seconds. Then I realized that this is brilliant. I mean, our cinema is waking up. There was no digital cinemas at that time, and there was no revival at that time. At least that's what I felt. There was no revival in 2009. I think it was 2008. So I just loved the character, and I started writing a film on his personality. Actually, by the time we almost finished the casting, in the middle we saw Hamish Sheikh, and then we shifted the character because he was supposed to be Hamish Sheikh's character. Actually, he was designed to be the lead role, but because the film was too tough and it was in minus 30 degrees every day, so we shifted the character, and he became the bigger brother, and Hamish Sheikh became the younger. अभी भी आवाज नहीं आ रही सर आपकी. And I see we have been joined by Samia Mumtaz, who played Albasha in the film. Welcome, Samia. Thank you. Thanks a lot. Sorry, I didn't catch the beginning of the conversation. It's okay. I'll ask you. Okay. You are Hello, looking, Jami. by the way, you are looking Hello, very boss. Where are you? Okay. Assalamualaikum, Shabir yes, साहब. वालेकुम अस्सलाम. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल आ रही है, फुल के. जी बिल्कुल. तो शबीर साहब, आप बताएं, जब मैंने आपसे जो सवाल किया, जब पहली बार उन्होंने अप्रोच किया, तो आपको क्या ख्याल था, ये ऐसी और फिल्म है जो आप करने जा रहे हैं, या आपको इसका अंदाजा था कि ये इतिहास में इसका नाम होगा कुछ? जैसा कि जामी साहब ने कहा कि हम एक मिशन के लिए गए थे जिसमें इन्होंने मुझसे कुछ डिस्कशन किया अबाउट द मूवी, तो मेरी उन्होंने राय ली. मैंने कहा भाई आइडिया आपका बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और जामी इज ए वेरी क्रिएटिव पर्सन. मैं इनके साथ मैंने काम किया, मुझे पता है क्या काम करते हैं, और मैंने कहा आप जो भी करेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे. बहरहाल यह तय हुआ. उसके बाद फिल्म का प्रोसेस शुरू हुआ, कागजी तैयारियां होती रही. उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत ही खुश नसीब शख्स था कि जामी ने मुझे बहैसियत टाइटल रोल के इंतखाब किया, मुंतखब किया. मैं बड़ा खुश हुआ. लेकिन मसला क्या कि ड्यू टू माई एज हमने वहाँ माइनस टेम्परेचर में काम किया. तो वहां पर फिर मैंने जामी से कहा, मैंने कि जामी देखो मेरे लिए ये कैरेक्टर, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा वो जो वाहिद का कैरेक्टर जो है वो चलता है, बहुत दूर तक जाता है, और बड़ी उसमें जाफिशानी चाहिए, ताकत चाहिए. जब मुझ में इतना हौसला नहीं था तो मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस फिल्म का हिस्सा था. मैं बिल्कुल मैं हूँ. अब आप अपनी मर्जी से मुझे जो कैरेक्टर चाहे मुझे आप दे दें. तो जामी ने मुझे जाहिर के लिए सेलेक्ट किया. ऑनर फॉर मी. जामी जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके मुझे लगा कि मैं सफल हो गया. बहरहाल मैंने काम किया, और जिस तरह जामी कहते रहे करता रहा, और शुक्र है कि हमारा काम कामयाब हुआ. फिल्म देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि फिल्म की नौइयत क्या है. एक बहुत ही डिफरेंट उसका जो मजमून या सब्जेक्ट है, मुख्तलिफ. और दूसरी बात ये वो मसाला मूवी नहीं है. जी बिल्कुल, बहुत ही वर्टिक मूवी है. तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर था. हालांकि मैं इससे पहले कई मूवीज कर चुका था, मगर ऐसा काम मैंने जिंदगी में पहली बार किया. वो जो आपने देखा, अब ये आप पर है, आपने मेरा काम कितना पसंद किया, कैसा किया, ये मेरी नवाजिशों के करम होगा. सर आप सब तो हमें एक पेंटिंग में की तरह नजर आ रहे थे, जितने भी एक्टर्स थे उसमें सबका काम उम्दा से उम्दा था. एक मिनट होल्ड कीजिए. हाँ, सामिया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. जी आप कहिए. जी मैं एक बार सामिया से एक सवाल करता हूँ. मैंने सुना है कि जामी साहब ने 5 साल लगाए ये फिल्म बनाने में. आपसे मुझे एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए. जामी को भूल जाइए, जामी यहाँ पे हैं. के दौरान कभी खुंदस नहीं हुई क्या, ये आदमी फिल्म बना रहा है या वो बल्कि खिचड़ी खीर सेक रहा है? आई मीन
कभी मन नहीं हुआ कि मैं छोड़ के भागूं और काम करूं, मेरे कैरियर में होंगी, मतलब honest. मुझे तो नहीं, जामी ने 5 साल इंतजार करवाया। हाँ. मेरे साथ तो एक और कहानी ये हुई थी कि इन्होंने मुझसे अपनी स्क्रिप्ट शेयर की और मुझे बहुत मजे की लगी। बहुत विजुअल बहुत थी उसमें, इतना डायलॉग इतना नहीं था जितने की कहानी जो थी विजुअली बताई जा रही थी, जो कि मुझे बहुत मजे की बात लगी। और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ये रोल करें, और उसके अंदर मुझे ये बात नहीं क्लियर हुई कि उन्होंने जिस तरह से उसको कंसीव किया था, उस औरत के बड़े बहुत लंबे लंबे बाल, खूबसूरत, और वो उसके बच्चे भी जब उसको याद करते हैं तो उनकी मेमोरी में भी अपनी माँ के बहुत खूबसूरत लंबे बाल होते हैं। तो जब मेरी और जामी की पहली मीटिंग हुई तो मैं जब इनसे मिली तो मैंने बाल शेव ऑफ किए हुए थे अपने सर पे से। तो वो थोड़े से उनको धचका मिला ये देख के, और इन्होंने फिर वो मेरा वाला रोल जो था वो किसी और को पेश किया, और फिर वो वहाँ पे बात शायद आखिरी मिनट में बनी नहीं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब इन्होंने मुझे लास्ट मिनट कहा कि आप कल आ सकती हैं, क्योंकि मैं तो आउट हो चुकी थी उस फिल्म से। लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैं अपनी दूसरी शूट से बड़ी माजरत और माफी मांग के और भागी भागी क्वेटा गई, और फिर हमने ये किया। मुझे फिर विग पहननी पड़ी, वो अलग बात है। भाई जामी, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये 5 साल का माजरा क्या था? मतलब एक फिल्म बना तो साल 1.5 साल में भी बन जाती है, तो ये 5 साल आपको किस बात में लग गए? इसके इसके दो जवाब। पहले तो अब सामी आई हुई तो मैं एक चीज बोलूंगा। मैंने सोचा था, मैंने सामिया को एक दफा देखा था किसी टीवी ड्रामे के अंदर, एंड मैंने कहा था कि कोई भी फिल्म होगी मैं लिखूंगा इनके लिए पहले। वाह. तो मैं पहले पहुंचा इन्हीं के पास, मैं लाहौर गया इनके पास मिलने। वो सही कह रही है, वो बड़ा शॉकिंग था। हम लोग गए, मैंने मीटिंग की, मैंने कहा माय गॉड, इनका तो बाल ही नहीं है। अब पश्तून कल्चर में औरत के बाल ना होना मींस लाइक माय गॉड, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। तो मेरा तो खाली ये पॉइंट है, इस वक्त जो जो लोग आए हुए यहाँ पे उनका एहसान है मेरे कैरियर और मेरी जिंदगी पे। और तो दूसरी चीज वाइस वर्सा, जावेद भाई, वाइस वर्सा। ओके, माय गॉड, मोर बिगिंस। हाय एवरीवन, याद है? अयाज, अयाज क्या आप अपना वीडियो 90 डिग्रीज पे कर सकते हैं? अच्छा, ये कैसे करते हैं? मैं आई एम यूजिंग जूम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मुझे आता नहीं है कुछ भी। जस्ट Do I रोटेट get it योर, free? हाँ परफेक्ट, ग्रेट, ओके ओके थैंक यू। दिस इज गुड। अच्छा सर, मैं आपका सवाल भूल गया। सर 5 साल पूछ रहे हैं। 5 साल, अच्छा 5 साल का इट्स वेरी सिंपल। देखें, यू हैव टू गो बैक इन टाइम 2007 2008। आई वाज अबाउट टू टर्न 40 एंड मैं फिल्म स्कूल से पढ़ के आया हुआ हूँ। आई एम वेटिंग, सिनेमा बनता नहीं। आई स्टार्ट डूइंग म्यूजिक वीडियोस। अच्छा, फिर भी सिनेमा नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद देन आई स्टार्ट डूइंग कमर्शियल। आई सेड ओके, लेट्स डू समथिंग, एंड देन फिर भी सिनेमा स्टार्ट नहीं हुआ। देन वी थॉट कि लेट्स जस्ट डू एनीथिंग, व्हाटएवर वी वांट टू डू। और फिल्म पैसे कमाए ना कमाए, क्योंकि कमाए मतलब फिल्म में आई नहीं तो कमाएंगी क्या। तो हमने कहा लेट्स डू समथिंग फॉर आवर हार्ट, हमारी अपनी मर्जी ना चले। तो द होल पॉइंट वाज, मूवीज फाइनेंस नहीं हो रही थी, और मेरी फिल्में अभी भी फाइनेंस नहीं होती। वो कहते हैं कि यार ये फिर बना देगा कोई अजीब सी फिल्म, बट नोबडी रियलाइजेस कि वो जमाना क्या था, क्यों बनाना जरूरी थी ऐसी फिल्म। तो पॉइंट नाउ इज कि जब फाइनेंस नहीं था तो वी वर डूइंग कमर्शियल्स, हम फाइनेंस कर रहे थे खुद ही फिल्म, फिर बनाते थे। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज, हम शुरू आदमी करता है जोश और शौक से, और जब खत्म करता है वो दिमाग से करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दिल से बनानी होती फिल्म नहीं, या बस हम वो करेंगे जो जिंदगी में आज तक नहीं हुआ। आप फिल्म ऐसे लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं, जब तक आप फिनिश कर रहे होते हैं आपका घर ऑलमोस्ट बिकने पे आ चुका होता है, गाड़ियां सारी बिक चुकी थी। बिल्कुल. तो इट बिकेम दैट प्रोसेस। तो उसमें ये था कि गाड़ियां भी नहीं बची, तो अब क्या बेचना क्या है। तो एंड में ये शुरू हो गया था। बट द होल पॉइंट वाज, दो चीजें थी हमारे लिए। फिल्म एंजॉय करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लाइक आई सेड वी डू टीवी कमर्शियल्स आल्सो, एंड you cannot attach yourself, and it cannot be your best thing
as a TV commercial director. So film, we thought, okay, no, just put everything, whatever, and enjoy the process also. So we had like 15 different edit versions. We had, yes, the editor, we changed 2 editors. We worked with 1 editor. Then he got busy. He said, yeah, Jami, listen, this is enough. And then we went to other editor, because you have to understand, at that time, we had no idea how to finish a film. And nobody, I mean, we didn't have editors. We were all learning. And the post-production also, it was, and the way we were handling it, it was very childish also, because we wanted to do everything, and it's not possible in every film. Sometimes you have to let go. So we had a version of 3 hour, 40 minutes version also, Really? because we did like around 20 scenes with single takes, very, very long takes. So that made the film very long. And my distributor and producer Nadeem Manviwala said, Jami, listen, just cut the film down. Nobody's going to watch 3 hour, 40 minutes, not Ben-Hur. So then we realized maybe, yeah, it's not Ben-Hur. We thought it's Ben-Hur. So we had to, so that was a reason for 5 years. A question arises here because in cinema making in Pakistan was adamant till 2005. I think the new revival of cinema making happened in Pakistan from in the 2005, 4 or 5, when it was reopened again. And you conceived more during the initial years when cinema making was still taking its roots in Pakistan. It was not even, now cinema has become an industry, has taken a shape of an industry in Pakistan. But at that time, when you were conceiving your film, cinema was still taking its roots in Pakistan. It was still getting seeded. So was it not a very ambitious initiative, or something which would have been considered impossible at that time when you started? Sir, I think cinema literally revived with VAR, actually. Before that, a lot of people were trying, like Mehreen Jabbar came, she gave her input to the industry. Before that, it was basically, you can say, so it was an ISPR effort. Like a lot of like films were coming from Shoaib Mansoor Saab. The only issue with that was it was not part of the industry. It was coming from outside in, not inside out. So it never started anything. And the profits are going where so it matters who's earning what, is the industry earning or not. So I believe it started with VAR. Everything just exploded during our post-production. It changed everything. By the time we came, industry became very masala driven. Right. And we were brutally judged that this film is an art film. You are very slow. I'm like, wait a second, what do you mean you're very slow? There was no film before, for 4 years. And so it was interesting. It was an interesting time when it happened. And it was very important for us all to be there in the start of this news phase of the film. That was the best, beautiful part, actually. Right. Fayaz, I want to ask you a question. Yeah, sure. Yeah, so you got a very dynamic role in the film. It's a very dynamic friend of the hero, so I wanted to know if you can talk a little bit about the role, how you got this role, and how you conceived it. And did you think initially when Jami approached you, did you thought at that time that it's going to be a very historical film, a masterpiece? First of all, I would like to thank Jami Bhai for considering me and for proving me as Imti, the devil of the movie. Well, actually, I was doing another film that was co-produced by Jami. It was called 021, and I was on their set. So I just got a call from casting director Saimaji,
and she was like, "We need you tomorrow. We have to take the audition." I was like, "No, I'm in Lahore shooting for 0 to 1." And she was like, "Okay, okay, when you're coming back?" I said, like, "I'll take a week or so." So then went there. They gave me just one big monologue, one crazy monologue I would give. And well, there were some big stars out there for that character, for that audition, and I did that. And luckily, I don't know what was in that audition of mine that clicked Jami Bhai to approve me that he will answer you the best. So yeah, that's how I got more. And yeah, from the day one, the moment actually the scene is that when I was shooting for 0 to 1, I got to see some of the rushes and bites of the movie on the sets of 0 to 1, and I was like, damn man, this is some sort of Russian movie. This is not a Pakistani visual. Like in Pakistan, we used to make masala movies, or back then it was a Gandasa culture, a very interior Punjab sort of a culture movies. But this was somewhat a screen changer for me, and it instantly clicked me. And at times you had a wish, and that instinct, and at that moment when I was watching those bites and those clips, and I was like thinking in my head, I wish I was in this movie. I wish I could be. And at that time, I guess 80% of the movie was shot already Okay. in Muslim Bagh and the train story of Balistan. So after that, I don't know what happened to Jami Bhai's brain, or there was a connection, or there was a telepathy from my side. It happened, and afterward, the Karachi part was added, and I was being called for Imti. So in It's somewhat a dream story for me, because I was not in that movie when the movie started. I was not in the movie when the movie was 80% done. Only the last 20% of the movie just came from the mind of Jami Bhai, and it was I don't know if these were the changes or what, but yeah, in that last 20%, luckily I was there, and it changed my whole career. And I guess there's a doll in the back. yes, we can Thank see you, that. Jami Bhai, for that. Yes. So in real life also you are short-tempered and impulsive as your character. Yes, I am impulsive, but I'm not short-tempered. I'm actually from a comedy background, so I don't, used to get hyper or very angry. But yeah, I think there's a connection between a comedy and a negative character, because if you see in Hollywood, in Pakistan, or in Bollywood, there are many actors who are initially comedians that turned into villains, and vice versa. So I guess there is a connection between these two extremes. So it happened actually in my case as well. And for Harsh, for your Yes. kind information, in case if you don't know, I actually started my career in India. I was part Which of the Laughter Challenge 2. I was the part of the Great Indian Laughter Challenge 3, then Punjabi Chak De, then Comedy Ka King. I've actually won Sony's show, Comedy Ka King Gone. So yeah, so this was two extreme things for me, to being a stand-up comedian, and then being casted as a villain in Jami's movie. And I guess it was Jami's brain, because I was never being accepted as an actor here in Pakistan, because there's a stereotype that yeah, he is a comedian, he can only do comic roles, and he should only do stand-up comedy shows or sitcoms. I was very barred in that thing. Um, my chains were actually shackled by Jami sir. So it was Django unchained by Jami from my side. Samyaji, I wanted to ask you, your character was a central character. You got the central character in the film, and it was very intense role. What kind of preparations you went through for this role? It was very intense and very different. Also, dialect also. It was based in Pashto. You had to speak Pashto dialect. So, what kind of preparations you went through? We actually workshopped a little bit before we started the shoot, and I asked Jami if I could be
introduced to a local family, so I could see how people within the family operated, how they, because I'm not from that background, so I wanted a bit of familiarity with that. And I had help. We had language coaches who were, Hamid Saab was very helpful because he was familiar with the culture and the language and the way that things should be spoken. And we actually, there was a lot of help on set to get the inflections right. So it wasn't just one person doing their role, it was a team effort. Okay. Jami, I wanted to ask you, the kind of cinema you make, the films you make, the art you create, there are very less funding available across the world. I'm not talking about just Pakistan or India, across the world. There are a lot of issues with funding for such film and taking it to audience. How do you see what kind of efforts could be made to create a market for such film? Because the film should also bring back its investment, at least. I'm not about profit, but it should at least bring back its investment for the producer to be able to produce more such films. So do you have any idea how it can be achieved, how such market could be created, or such framework could be created? Harsh, this was very easy for me to understand way back, and Samya would agree that she saw me at a literary film festival in Lahore, and we spoke the same things 5, 6, 7 years back. That if we going to follow a pattern and keep doing the same thing again and again, it will destroy the industry. The first thing I said right after my film came out, there were a series of films that were doing item numbers, masala songs, and that's when we realized this is something not right. This is not, I'm not saying because I'm a feminist and I'm just doing moral policing. It was not about moral policing. It was about following a set pattern by Bollywood, which would, I felt this is pre-Me Too. You have to understand. We start saying this, don't do this, don't go there. This will not last longer, and this cannot create an industry first, because first of all, you copy pasting Bollywood, which will be playing in the same cinema houses next to our film. So, of course, our films are not, I'm not saying great, okay, they're fine films, but next to a Salman Khan blockbuster or Amir Khan film, we are playing our own film, which trying to be the same. It will not work with the same ticket price. Just doesn't make sense. It's like saying Mercedes-Benz and Corolla will be the same price. I'm not demeaning my own cinema, but I'm saying do something else. Find your own character and work on that. And now we're sitting here in 2020. Fine, it's COVID time, but cinema is in deep trouble right now in Pakistan. And we are trying to come up with stories. We're trying to do something, but honestly, when you say you're trying to do something, you have to see as a nation, we need to learn how to tell stories. We don't know this yet. Our TV dramas were pretty good, and we tried to bring those TV drama people into cinema, but we didn't realize TV dramas are for free. Cinema, we are charging. So then something happened, and we have some kind of cinema going on right now, and it's not going to work, I think. So we have to find our own character. I mean, I'm not saying we are Bollywood, or we are not Bollywood, but we are different. I'm not saying we are into Persian cinema, or we should be into, it's like that type of cinema. But the whole point is that 2% of the films made money. So the films that were supposed to make money didn't make money. So why are we being judged? That we were just supposed to bring respect. And so these films are judged pretty harshly. I mean,
But I think there is no other way that we must support the indie cinema, the parallel cinema. Otherwise, everything will look the same, and it's gonna hurt the cinema very badly. We must finance or make a way where independent cinema, independent filmmakers should come and make low budget films. Fine. So, but you can just look at Pakistani Manto, Lal Kabutar, Cake. These films are not small films. These are very special films that went around the world. Absolutely. I see a lot of good work happening in Pakistan these days. I've seen Cake. I found one of the best movies coming in last few years. I saw your other film, Motorcycle Girl, which we are showing, Motorcycle Girl, by the way, in this festival Yes. on Saturday. So this is also one of the very beautifully made film. You are co-producer in Motorcycle Girl. Yes. Here I would like to bring in Supriti. Supriti is one of the jury members of this festival. And I would like her to, if she wants to ask any question or comment with all of you about your work. I really don't have anything to say. We loved watching these films, and हमारे यहाँ भी कमाल अमरोही साहब ने 12 से 16 साल लगा दिए थे पाकीज़ा बनाने में, and Shekhar Kapoor took an equal, he took about 5 years to make Elizabeth. So I think थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए फिल्म मेकिंग में भी. वो जो जल्दी जल्दी बनाते हैं 6 महीने में 1 साल में, शायद उसमें इतनी सोच नहीं होती है. There's not that much of thought that goes into the making of the film. So I just want to say, I think your taking 5 years has reaped very good dividend, and I'm looking forward. I think we should show the film to the audiences now. You want Thank to you. ask, Supriti? Sorry? You want to ask any question to him? So I want to ask a lot of questions. I mean, it's a mega production. It's a huge task. It's, coordinating in difficult terrains. I think these come with their own challenges, isn't it? How did you handle that? Acha, that's a very good question. It looks big because first thing first, we learned something in film school that film is mainly cast. Once you get your cast right, then honestly, I didn't have to work that hard. I just worked on the characters with the actors, and they were flowing it beautifully. And when you say it's epic production, we only had 40 lakh rupees when we started the film, and so there was no money actually. It was all favors people were giving because the industry was starting. You can pull favors at that time. If you ask now, people will say, no, come on, everybody's making money. But at that time, everybody just joined in, and every single person you see over here, I mean, they didn't charge anything. They were there living with us. It was brutal, especially the Balochistan side. The shoot was really brutal because we were living in the ghost town to get that authentic look. So when you go in a ghost town, that means you will not get the food, you will not get water, you will not get gas, coal, anything. So we were, at one point, we were burning trash, plastic trash to get, to warm ourselves up. Exactly, it was that bad. It became that bad, and that's how we became. It was, for us, it was The Revenant, the film. We had this big beard. We couldn't take bath for 40-50 days, and it just became really brutal. And very quickly, I will just keep saying things about my cast because they're here. And there was an older question about Samia's character. If one sees the film, I will not say too much, even though it's an older film. But Samia's character was very, very critical. You have to understand that her character dies in the start, before the film starts. She dies, and she's the protagonist. And after her death, she saves the family.
after her death, she saves the family. This was a very difficult position for her because she came only for 2 or 3 days max. And she had to shoot so many scenes in one day. It was really tough to memorize 20 pages. It was really tough. I mean, Samia, only she can pull this off, आप seriously. बताएं उसके बारे में थोड़ा सा. What Jami said just now. मुझे तो बहुत मजा आया था एक्चुअली ये करते में. एंड ये लोग अपनी प्रेपरेशन में, सेटअप में काफी टाइम लगा रहे होते थे. तो हम एक्टर्स तो सिर्फ अपनी रिहर्सल्स ही कर रहे थे उस वक्त. अपने कैरेक्टर्स को हमने बहुत डिस्कस भी किया, और मेरा कुछ उन्होंने यंग पोर्शन भी दिखाया है, ओल्ड पोर्शन भी दिखाया है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माय लाइफ दिखाई हैं. So उनको समझने के लिए I was working with the different actors from the different parts of my life, and that really helped because we had almost like 4-5 घंटे हम आराम से सिर्फ अपने कैरेक्टर्स और अपने रोल, अपने सीन के ऊपर काम करने को मिलता था, dedicated. So that really, I think that helped a lot in understanding. We weren't just thrown on set as soon as we were ready. We had a lot of time to prepare. And Samia, one more thing very quickly. What Samia, she's very humble. You have to understand where I'm coming from. She came quickly and she said, first of all, Jami, we need to do a workshop right away. I'm like, okay, this sounds good. You also, Jami, come. So we did a huge rehearsal where we all became one. One became one, and she made sure that the whole set comes together. All the actors were supposed to dance in a huge room we had. We are supposed to dance and did a lot of things, and a lot of actors were like, what is going on? But that was very important. Then Hamid Sheikh's character and Samia, they had to gel as a husband and wife. And we didn't have time because we asked a favor from Samia and she left a shoot in the middle. So that was an interesting workshop where nobody would overlap. And Hamid Sheikh was overlapping all the lines. So Samia was like not very happy. Like, wait a second, you have to hold, and then when your lines are done, then you will go in. So, and I was like, yeah, this is a very interesting exercise because in the way I shoot my films, I just give everything to my actors and just do whatever you want and this and that. So everybody wants to be special. So that was very interesting to see how she stopped overlapping of lines, and that was beautiful. And that's when everybody understood more has arrived. That was Samya. So we were looking for mother. We had everything else was ready, and we were looking who to shoot because we had a person before her, and she was in India, and I won't name her, but she wanted to meet Shah Rukh Khan, and we were like, can you come back? They said, no, I cannot come back. I have to meet Shah Rukh Khan. I like, okay, whenever you come back, you're fired. So Shah Rukh Khan is responsible for that. Yeah, and very quickly, Shabir Saab is here. Shabir Saab was going through hell, but he never told us. He was diabetic. He had a heart problem. And during the shoot, he kept working. He got an angina and he was diabetic and he fainted during the shoot. And we took him to the hospital. Within a few hours, he said, "No, I'll be back," and he was back. So, at his age, it was not safe for us actually. So for us to shoot over there. But ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो जुनून होता है ना एक्टर्स का, बहुत ही मतलब अजीब सी चीज होती है ये, है ना? इसके बारे में कुछ शबीर साहब आपके लिए ये जो जुनून होता है ना, हमारे यहाँ पागलपन कहते हैं इसको, कि थोड़ा सा एक बस पकड़ लिया है कुछ तो उसको करके ही रहेंगे, चाहे सेहत पे असर पड़े, चाहे फैमिली नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने जो डिसाइड किया हम करके रहेंगे. ये जो आर्टिस्ट में कि ऐसा होता है ना, कुछ पता नहीं क्या होता है अंदर, पर एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो बस. आप इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा. आप इतने सीनियर कलाकार हैं, आप कुछ तो बताइए.
We have Hamid Sheikh also. शबीर साहब आवाज आ रही है? ये सबको आ रही है आवाज। Hello Hamid भाई, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया, good to see you. क्या बैकड्रॉप बनाया आपने हमें। माय गॉड शबीर। मैंने कहा अपनी शोरील चला दे पीछे। सही। शबीर साहब आपको आवाज आ रही है? शबीर साहब के पास लौटते हैं अभी। हामिद साहब से सवाल करते हैं। हामिद साहब, आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, मोर के पहले भी की हैं, आप उसके बाद भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता था कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो रिटन स्क्रिप्ट दे देते हैं एंड दे वांट देयर एक्टर्स टू स्टिक टू व्हाट दे हैव बीन गिवन, दे डोंट गिव स्पेस फॉर इम्प्रोवाइजेशन, एंड सम डायरेक्टर्स गिव a script but they give lot of space, they give lose space for actors to improvise the character, improvise the scene. So I want to know what kind of director is Jami when you are working with him. He works in the both ways actually. He gives you all the history और उसके बाद character build करने के लिए not only that, he will provide you the material which will help you. लाइक म्यूजिक आपको बैकग्राउंड आपका स्पेशली उसमें डिजाइन होता है, पहले से सेट पे आप पहुंचते हैं, यू विल गेट द सेम फील। उसके लिए आपकी जो उससे पहले ही वो उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है शायद। एक तो हमारे बॉस हैं, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बैठे हुए सामने मक्खन नहीं लगा रहा हूँ। और जब कैप्टन ना वो खुद इतना इस एनर्जी के साथ आए और जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जिस मौसम में, हम तो उस एरिया के उस इलाके के लोग हैं, वहां रहते हैं, लेकिन जिस पैशन के साथ वो काम कर रहे थे और वो टीम लेकर आए थे, और वो जिस इंडस्ट्री में है, टीवीसी के हवाले से मैं बात करूंगा, कमर्शियल्स के हवाले से, वो उनका बड़ापन है कि वो सब कुछ छोड़ के अपना वो काम हमारे साथ करने आए हैं। और फिर वो उसकी हिस्ट्री उनके पास इतनी थी कि उस पर वो काफी अच्छे से काम कर रहे थे। उस कैरेक्टर के हवाले से बात करूंगा, वाहिदुल्लाह खान। तो उस हिस्ट्री को मेरे लिए ऑब्जर्व करना इसलिए भी आसान था कि मैं उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था कि वो उस पर बहुत आराम से अप्लाई हो जाती थी। मैंने उस एनर्जी को पकड़ के और उस पर वही एनर्जी जो जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, वो उठाकर मैंने इस पे लगा दी। और प्लस दूसरा फायदा ये भी हुआ कि इम्प्रोवाइज करने के लिए, क्योंकि कुछ मेमोरीज पहले से थी मेरे पास हिस्ट्री में उस कैरेक्टर की, वही जो ना यूटिलाइज हो गई। कुछ ऐसी थी जो नहीं पता थी, जो नहीं हम डिस्कवर कर रहे थे, तो वो सेट पे जामी साहब होते थे, वो सेकंड नहीं लगाते, तो कहते थे यार हमी साहब ये जो ना इस तरह से नहीं, ये इस तरह से, इसको इस तरह से ले आए। फिर वो हम जो ना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, कि बड़ा लग्जरी था इन टर्म्स ऑफ being an actor, if you get everything, उसकी हिस्ट्री है, उसका प्रेजेंट है, उसका फ्यूचर है, और वो सब कुछ आपके सामने जो ना बाकायदा खोल के वो, यानी आपके लिए मुश्किल नहीं कि आप भाग रहे हैं सीन लेके कि जल्दी से सीन कर लो, नहीं, आपके पास ऑप्शन था कि आप 10 रीटेक करें लेकिन काम सही करें, उसको जो ना वो डिलीवर करें। तो डायलॉग प्रिपेयर करना कितना मुश्किल था, क्योंकि वो डायलॉग बिल्कुल अलग है। डायलेक्ट प्रिपेयर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो हमारी सिटी की लैंग्वेज है, हमारी टापोरी उसे कहेंगे, जैसे बम्बई की टापोरी है, हमारे कोयटा की वो लैंग्वेज है, टापोरी से कहेंगे। तो वो तो हम बोलते ही वही लैंग्वेज है, और वो जो उसका फ्लेवर है वो बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि जिस एरिया में हम कर रहे थे, उस एरिया में कोई इस तरह की साफ उर्दू बोलता नहीं है। वो पश्तो से जो है ना उनकी जो लहजे हैं वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं। हम जो है ना वो, हमारी किस्मत ऐसी है कि हम हमेशा से उर्दू में कोई अच्छे, हमारी जो है वो उर्दू अच्छी नहीं रही, हम गुलाबी उर्दू बोलने वाले लोग हैं इस शहर में। और थोड़ा सा ये भी है कि हमारे पास जो पहले हमारी उर्दू जो आई है उसमें अंग्रेज का भी बड़ा अमल दखल है। अंग्रेज ने भी जब उर्दू ट्रांसलेट की, जब हम भी कोई स्लैंग बोलते हैं कोयटा में, तो वो डायरेक्ट वो अंग्रेज वाली उर्दू टाइप की जो ना वो उर्दू बोल रहे हैं कि तुम कौन है, किधर से आया है, कौन है, क्या करता है। वो थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस है, प्लस हमारे अपने पास बहुत सारे कल्चर्स अफगान्स आए, उनका इन्फ्लुएंस है। तो उर्दू एक हमारा अपना एक फ्लेवर है जो कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं उस फ्लेवर को लेकर आऊँ। जामी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा जी हमारा ये फ्लेवर है, तो फिर उन्होंने बिठाकर स्पेशली साइमा जी को और हमारे बाकी जो आर्टिस्ट थे, हम सब ने वो मिलके उसको डेवलप किया, उस एक्सेंट को, उस फ्लेवर को, ताकि हम सब एक ही पेज में हो। जब हम डायलॉग बोले तो वो एक ही लहजा लगे, बजाय इसके कि कोई लगे कोई किसी और शहर से आया और कोई किसी और शहर से। जामी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि what is your preference? You want you like your actors to strictly follow your script, your lines, or you like
actors to improvise and give input from them also, their side also to the character? What is generally what you prefer? Harsh Saab, as my own personality, I have learned to just give up everything, and that's what we learned during the shoot, when we were trying to control everything and nothing was working. And then we realized we're not making Avatar. We don't have money. We don't have anything. So why don't we just let it go and just see what happens every day? So that was a whole process. And so 90%, I would say, it was all about actors. And one thing was very important, that actors knew the story. They never knew the script, because I was writing the script during the shoot. So it was very, very difficult for me to write also, because I'm not a writer. So it's a huge, long history. I mean, I waited and had a draft from somewhere, and we just rejected the draft, and the time was coming. So all we had was long meetings with the actors. So everyone knew their character arc, their climax. Everybody knew. So whenever I would write and made a scene and dialogues, they would know, okay, Jami, I would not, my character will not do this. So it was a very open-ended approach. All the actors were involved. Even like Samya would know, we had a long scenes with her, and then she would say, Jami, this is too over dramatic. So we would cut it down, and so it was an interesting process for me. To be very honest, I was enjoying the film because I had great human beings on my side, especially actors. That was very important. One person is not here, Abdul Qadir Sahab, Bagu Baba. He passed away a few years back. And you have to understand these actors, they are very special people. That's why the movie is so special. Abdul Qadir Sahab was like the glue. Everybody was corrupt, and Palwa mother was trying everybody to be honest and just somehow the family to be together. And then you have this man, I used to call this Jedi, and who's the perfect example of what one person should be. Brutal, black and white, honest person we could ever create. And Abdul Qadir Sahab was the one, because he's a legend before my film. So when we came to Quetta Television and we were doing castings, and he was sitting there, and we were like, what are you doing, sir? Because I want to give auditions. Like, no, you're not giving auditions, sir. You're done. Said, no, Jami, I will only give auditions, then you can cast me. And people would, and sir, you cannot imagine, these people are being silent. They have done something very special. Abdul Qadir would wait for everyone to eat food, then the scraps he would eat. He would scrape the scraps and eat. And I was like, what is he doing? And I'm not kidding. I'm not buttering him up or anything, but I just want people to know, I mean, what these people have gone through, because it was brutal. 90 or 100 days of shoot. Not many people can handle it these days. Actually, 100 days is a mega huge shoot, actually. And the brutality of the weather, and it was pretty tough. Jami, I wanted to ask you. हमीद साहब से Yes, please. हमीद साहब, आपने ये जो फिल्म थी, इसमें your physical appearance, your walk, everything is so special, or particular to the character. How did you develop it? आपने किसी को देख के कॉपी किया, या अपने आप ही सोचा कि ऐसे होना चाहिए? कुछ चीजें कॉपी की। मैं असल में मेरा जो ड्राइवर है मेरे शहर में अभी भी मेरे पास काम करता है, जो उसकी टांग का प्रॉब्लम है, वो मैंने उससे कॉपी किया। वो पोलियो का मरीज है, उसको कोई रखता ही था ड्राइवर, तो उसको बड़ा शौक था गाड़ी चलाने का। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वो मेरे पास आ गया। मुझे कहता है, यार मुझे गाड़ी चलाने का शौक है और मैं गाड़ी से नहीं चला सकता हूँ क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, मेरी टांग नहीं काम करती। मैंने कहा, तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? कहता है, मुझे आती भी नहीं है। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुमको गाड़ी सिखा दूंगा, तुम फिर मेरे पास ही रहना। तो पिछले 12-15 साल से वो मेरे पास ही काम कर रहा है। तो मैंने उसको देखा, जो वो चलता था, उसको मैंने कहा, चलो वॉक के लिए चलते हैं। तो पहले तो बड़ा परेशान हो कि मेरे साथ वॉक के लिए कैसे जा रहा है।
मैंने कहा चलो फिर घूम फिर के आते हैं, वो थोड़ा सा वॉक करेंगे इधर हमारे एरिया में पीछे। तो मैं उसके साथ चलता था, मैं उसको आस्ते आस्ते मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मैं इसलिए तुम्हारे साथ वॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉपी करना है, मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना ये मुझे अच्छी लगी है, मेरा कैरेक्टर है उसके लिए। तो वो समझ गया, उसने कहा कोई मसला नहीं है। मैं उसके साथ जब वो चलता था, हम दोनों भाई जो ना वो जरा सा यानी मेरा मतलब मेरा ड्राइवर और मैं, हम दोनों जो ना वो एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, अमित सर ये क्या कर रहे हैं। मैं उसको देख रहा हूँ, यार नसीबुल्ला क्या हुआ तुमको? कहता है नहीं यार आप हमारा कॉपी कर रहा है, हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैंने कहा कोई मसला नहीं। तो वो एक चीज तो उनसे मिली। बाकी जो हाथ वाला है वो जामी साहब के पास था, उनका आइडिया था कि वो एक जो बचपन से जो उसकी जो मेमोरी है, जिसमें जो मेरे बेटे ने हनान ने करेक्टर किया मेरा ही, जिसमें उसकी जब हाथ छूट जाता है वो लेकर आना, वो सब जामी साहब का डेवलप किया हुआ था। वो तो ऑलरेडी स्क्रिप्ट में था, वो तो लेके चलना था मुझे। इस तरह से दो तीन चीजें मिलाकर उसका पास्ट, उसका बेसिकली वो टांग का मैं इसलिए भी रखना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा कोई बोझ में लेके चल रहा हूँ साथ जिंदगी में, कि मैंने कभी भी यानी अचीव नहीं किया, तो एक तरफ से आधा टूटा हुआ हूं मैं। तो मेरा फेस जो है उसमें भी थोड़ा सा मैंने ये एक आंख छोटी की हुई थी, जैसे कोई लकवा हुआ है या कोई आधा पैरालाइज हुआ है दिमाग, वो सारी चीजें लेके, छोटी छोटी चीजें लेके। इतना टाइम था, फिर इतनी हिस्ट्री हमारे पास थी, इतना उसका जैसे जामी साहब ने बताया कि आर्क हमारे पास था, तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हम हर चीज को एंजॉय कर रहे होते थे कि यार ये ऐसा होगा तो ऐसे होगा, हम इसको ये रख लेंगे ये। और जामी साहब को हम दिखाते थे कि यार जामी साहब ये कैसा लग रहा है, तो जामी साहब अप्रूवल के बाद हम उसको अप्लाई करते थे कि ठीक है जी ये कंटिन्यूटी में चलेगा। It came out very nicely, of course. So, yeah, Harsh, go ahead. आप बोलिए, आप कुछ पूछ रही हैं तो बोलिए। नहीं, आप पूछ लो। Jami, I wanted to ask you, we know the South Asian cinema is style, treatment is basically inspired from our folk traditions. Initially, it is inspired from our folk traditions in South Asia. We are divided into countries, nations, but culture cannot be divided. This is. And our cinema, South Asian cinema, usually contains a lot of music, melodrama, and it is distinctly different from European style of filmmaking. But in the past few years, 5 years, for past 5-10 years, we are seeing that a lot of new filmmakers are experimenting with bringing European style of filmmaking into our Desi context. And you have also, I think, followed similar treatment. So, what do you think about this transition happening in South Asia? In filmmaking? Sir, it's very simple. Like I said, we are saying this for the past 10 years that we should follow a certain type of cinema. When I say certain type of cinema, that doesn't mean this type of culture. I mean, I'm saying when you follow life, then you should follow life. You don't over exaggerate just to sell tickets. I mean, we had a panel discussion with Vishal Bhardwaj also in Pakistan, I think in Hum Festival. Yes, and he was on my, yes, and somebody asked Jami Saab didn't like your song, item number song, in which was at Omkara, Bidi Jalai Lena. And I was like, my God, he's sitting here, and he just went like, who is this Jami? Bhai, kaun hai bhai ye? And I was like, my God, no. So I mean, for me, it's very important that you must follow something which is very genuine. I'm not saying commercial cinema is bad or strong, but you have to understand Irani film Separation was a much exciting film than Dark Knight also. You have to understand it. It really hooks you, and it's a commercial cinema also. It got Oscar also. The whole world talked about it. So we have to understand that there are other ways of doing things, and you have to understand India is doing that. And that's what we were telling, that Jami, you don't understand. Look at Bollywood. That's what they're doing. And I'm like, no, you're not watching real Bollywood now. They have changed. We were telling them, look,
these films, what are they doing? This cinema's future, and people just don't want to listen. And like I said, right now, even in Indian, like Shah Rukh Khan, Amir Khan, and Salman Khan are in deep trouble right now. We have Indian parallel cinema that is blooming, and same thing in Pakistan. We have to understand, we cannot copy paste Bollywood and expect if you will make 300 crores. I mean, of course, it's not going to happen. There is no other way. For me, there's no other way. We can make commercial, very exciting films in a non-dramatic, non-over-the-top. I mean, it will change. Eventually, it has to be like that. So it is like how in Bollywood, they try to copy Hollywood and it doesn't work. What works everywhere, whether it is Iran or India or Pakistan, is original creativity. And that's the stamp that has to be there. It appeals more to people. The moment you're copying, making a remake of a film or just copying, making a cheap copy of a Hollywood film, it doesn't sell. No? And even if it sells, it's not as appealing. But a new idea about a middle-class family and their struggles, and that may just appeal so much to people. And that's what we are finding. In fact, now we have stopped calling it parallel cinema. पहले हम मेन स्ट्रीम एंड आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा बोलते थे, अब तो ये वाला सिनेमा ही मेन स्ट्रीम होते जा रहा है. That more and more people are looking for different types of contemporary issues. It's no longer the typical Bollywood formula masala films. So that is a change that even Indian cinema is seeing. And in fact, more than Bollywood, sometimes we find wonderful, very, very creative and innovative films coming from the Tamil film industry, which is down south. And some of our regional language films are deeply touching, like Satyajit Ray and Bengali films were Mrinal Sen, Ritvik Ghatak, all the Bengali film industry with very low budgets, shot in one house, in one dingy corner sometimes, but they made the most touching, most beautiful films. And see the Tamil film industry, it just goes haywire. Sab kuch hai, dance hai, song hai, tech rehearsals bahut hote hai. Unki to technology usage is like amazing. Light, sound, everything is like very big, and it's bigger than what Bollywood produces. So I think original creativity जो है ना, उसका तो होना बहुत जरूरी है. उसी से बनती है बात. बाकी तो सब short term formulas होते हैं जो ज़्यादा देर नहीं चलते. Actually, Pakistan, one of the misfortunes has been that there is the continuum of cinema making and cinema going was very hard. It just stopped at one point, and then it had to be reinvented. So there was nothing to fall back on. It wasn't as if something was evolving and then continued to evolve with the time. There was a very big break, and therefore this so-called revival, which has it hasn't happened even now, because we still don't have an industry. There are individuals who are working on passion projects or on commercial projects, but we don't have a pool of trained professional crew or technical staff. These are just individuals who happen to be good at what they're doing, but there is no training, there are no institutions. So, and there is no state backing, other than the films that have army backing, which have their own propagandist agenda. So we are still working in a vacuum. We don't really belong to a historical continuum. Ami bhai, I wanted to ask you, through this platform, Indus Valley International Film Festival, we are trying to create a network of filmmakers from across South Asian countries. A bigger network where filmmakers from across South Asia can meet, they can plan co-productions, joint ventures, they can collaborate on different creative ventures in cinema. And we have filmmakers from across South Asia, all countries, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, India, they all are supporting this venture. So I wanted to know your views if such a
robust platform is created, even though digitally at the moment, do you think filmmaking in South Asia will get enriched by collaborating with each other, and it will also help the industry to grow? And would you like to be part of such? Very good question, Ji. मेरा ख्याल है कि from my side, this is for me. I believe this question is for me. आप सब Yes. जो करना चाहें, Yeah, जरूर। so I've been trying this thing, you know. I'm the member of South Asia Pacific Film Festival for last 15 years, and I'm trying this thing कि हम किसी तरह से collaborate करें. I met many big filmmakers from your country, from other countries. Asia Pacific Film Festival में China आजकल head कर रहा है, और जकार्ता, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, टोक्यो, यूके, सबसे कोशिश तो यही रही कि किसी तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हम जॉइंट वेंचर्स पे काम करें. हमारी कहानियां, अभी एक छोटी सी एक कहानी है, जैसे बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान को ले लें. हमारा जो एक जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, उस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया. और ये कितनी बड़ी फिल्म बन सकती है जो तीनों मुल्कों में लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है चल रही है. अगर आपके मुल्क में कोई फौतगी होती है इंडिया में, या हमारे मुल्क में कोई फौतगी होती है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? कोई हिंदू हमारे मुल्क में मरता है तो वो बेचारी अपनी एशेस इंडिया तक कैसे लेके जाता है, कैसे उसको वो लेके, यानी उसकी क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री. तो एक ही हमारा वो, एक ही कल्चर, एक ही तरह के लोग, तो किसी ने काम नहीं किया. मार्केट के हवाले से बात करूंगा कि बहुत बड़ी मार्केट है, तीनों मुल्कों में हम फिल्में चला सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर आप लोग ये करते हैं. तो मैं तो सबसे पहला आप लोगों का जो वो एक्टर होगा, और जामी साहब मेरे डायरेक्टर होंगे, और इस फिल्म में मैं बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हूँ. मेरा मतलब है कि ये होना चाहिए, और इससे बहुत सारे बेनिफिट हम सबको मिलेंगे. हम बहुत करीब आ जाएंगे. हम कोई बहुत दूर भी नहीं है. राइट, हम बहुत दूर भी नहीं है. मेरा मतलब है कि हम कल्चरली हम बहुत ही करीब हैं. कल्चरली यस, बहुत ही करीब. हम इतने करीब हैं कि शायद हमें कोई दूर कर ही नहीं सकता. मैं वही मिर्चें खाता हूँ जो आप खाते हैं, मैं वही घी खाता हूँ जो आप खाते हैं, मुझे वही स्मेल्स अच्छी लगती हैं घर में जो आपको लगती हैं. तो कोई ज्यादा हम दूर नहीं. लोगों की बनाई हुई बातें, तो हमें वही फिल्म अच्छी लगेगी जो आप और मैं मिलके बनाएंगे, क्योंकि इसमें आपका भी थोड़ा सा मसाला होगा और मेरा भी कुछ. एग्जैक्टली. जो और मेरे पास इकोनॉमिक है, बेनिफिट भी होगी, क्रिएटिव इंडस्ट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलेगी जब साथ में. बिल्कुल मिलेगी. लेकिन अब देखें, अब मैं आपकी किसी भी सियासी हवाले से बात नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर. मैं अपने आप को सेंसर कर रहा हूँ. ठीक है, मैं यही चाहूंगा कि हम जो क्रिएटिव लोग हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं. हम कोई जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम कमाल कर सकते हैं. अगर सत्यजीत रे आपके मुल्क में पैदा हुआ तो हमारे मुल्क में जामी पैदा हुआ, और हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह. जामी, आपकी क्या रिएक्शन है इस ये जो हमने इंडस वैली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू किया, इसी इरादे से शुरू किया है कि साउथ एशियन फिल्म मेकर्स आपस में मिलें. कल्चरली तो हम कनेक्टेड हैं, और कल्चर जो फिल्में भी हैं, एक दूसरे से सीख के जो हमारी आर्ट है, म्यूजिक है, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके ही आगे बढ़ती हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो आपका इस इदारे के बारे में क्या ख्याल है? सर मैं तो इस तरह स्टार्ट करूंगा, जैसे आपके फिल्म फेस्टिवल के नाम से स्टार्ट करते हैं, इंडस. वो एक ही पानी पीते हैं हम दोनों, ठीक है ना. ये फड्डा जो है ना, इसमें आर्ट्स और फिल्म को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था. पहली बात तो ये, वी आर वन, वी हैव टू अंडरस्टैंड. इवन अगर आप दूर भी रहते हैं, फिल्म, आर्ट, म्यूजिक, व्हाटएवर, ये चीजें कोलैबोरेट करने के लिए बनाई गई हैं, ये चीजें जोड़ने के लिए बनाई गई हैं. इस चीजों को हमें रोकना नहीं चाहिए. सैडली हमने भी किया है, और इस दफा अनफॉर्चुनेटली इंडिया थोड़ा ज्यादा कर रहा है. हमारे एक्ट्रेस को निकालना, ये जरूरत नहीं थी इतना चीजें करने की. एंड इट लीड्स टू, वैसे देखा जाए थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन बना देगा जो कि जरूरत नहीं, जो कि 20-20 साल लगते हैं चीज़ों को ख़त्म होने. हम भी गुजरे हैं चीज़ों से. हमारे फिल्म ख़त्म करती है, सामिया बता रही थी कि एकदम से ब्रेक आता है, फिर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दोबारा स्टार्ट होना बड़ा टाइम लगता है. एंड आप नोट करें, इस वक्त अमेरिका में ना एक तो बड़ा मूवमेंट भी है, उसमें भी मैक्सिकन डायरेक्टर्स हैं, छोटे लेवल पे भी, नीचे लेवल पे इंडिपेंडेंट, उसमें भी मैक्सिकन डायरेक्टर्स हैं. क्यों? क्योंकि दे कनेक्टेड हैं, लिटरली फिजिकली कनेक्टेड हैं. हम लोग कनेक्टेड हैं कल्चरली एंड लिटरली कनेक्टेड है, यू नो.
तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज, एक्चुअली इट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हम लोग बात ही नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी पावर बन सकती है। हमारे एक्टर्स भी अच्छे हैं, हम लोग हमारे टेक्नीशियंस कुछ सीख सकते हैं, आना जाना हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखिए टीवी कमर्शियल्स में, मैं जल्दी बात करूंगा, हम लोगों के टीवी कमर्शियल्स में बाहर के कैमरामैन आते हैं, टीम्स आती हैं, थाईलैंड से आती हैं, बैंकॉक से आती हैं, पोलैंड से आती हैं, इंडिया से नहीं आ सकती। भाई क्यों नहीं आ सकती? तो ये एक ड्रामा मम्मा बन जाता है एकदम से, जैसे हम और आपस में बात करते हैं, ये खाली उसी वक्त होता है। ये याद रखिएगा, जब बहन भाई का और भाई भाई का फड्डा होता है ना, दैट इज द डेडलीस्ट फड्डा। हमेशा जब वो अम्मा अब्बा का इंतकाल होता है, बहन भाई लड़ते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक फड्डा होता है, बजाय दुश्मन दुश्मन का। तो पॉइंट ये है कि हम बिल्कुल बहन भाई हैं, ये इसलिए ज्यादा फड्डा बढ़ गया है, हम लोगों को इमोशनली एक दूसरे को हर्ट करना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आई डोंट नो, इस इंटरव्यू के बाद मुझ पे भी कुछ आ जाएगा कि पाकिस्तान में जामी साहब तो कह रहे हैं यार इंडिया के साथ दोस्ती करो, बिल्कुल करो भाई दोस्ती, इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं, चाहे कुछ कह लें या कुछ कह लें, दिस इज द ओनली वे। आई थिंक सिनेमा 2001 में याद करें, जब या उससे पहले भी, जब खान साहब ए.आर. रहमान के साथ म्यूजिक कर रहे थे 98 96 आई थिंक, क्या हुआ, क्या 96 में क्या थे, और 2020 में बैठे हैं, कुछ नहीं है वैसे। ये तो रिग्रेस हो गए, हम लोग तो पीछे चले गए, हम लोग सब लोग बुढ़े होते जा रहे हैं, हम लोग फिल्म नहीं बना रहे, खाली फिल्मों की बातें करते रहते हैं, कोशिश करते रहते बन जाए फिल्म कभी। और फिल्म बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए भाई, अब कॉल करो, दोस्ती यारी आओ और फिल्म स्टार्ट हो जाती है। यहाँ फिल्म बनाना लाइक हर फिल्म जो है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बन जाती है पाकिस्तान में, इतना मुश्किल है हमें, माय गॉड, इट शुडंट बी दिस वे। हम नेशनल बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम साउथ एशियन हेरिटेज की बात कर रहे हैं, जो हम सब कहते हैं कि इंडस वैली से ही फैली है। पूरे साउथ एशिया में जो कल्चरल कनेक्टिविटी है वो तो इंडस वैली से ही हम सब फैले हैं, जो कल्चरल हमारी कनेक्टिविटी है। उस लिहाज से तो हम जो आर्ट है, म्यूजिक है, हमारी फोक ट्रेडिशंस जो थी, वही आज मॉडर्न आर्ट जो सिनेमा है उसमें वो तब्दील हुई है। तो इस वजह से भी आर्टिस्टों को आपस में काम करने दिया जाना चाहिए, बहुत जरूरी सर, बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आखिर में एक सवाल है जो मैं सबसे जानना चाहूँगा, बारी बारी से कोई भी शुरू कर सकता है, कि अभी ये कोविड के दौरान पिछले 4 महीने में आप लोगों ने कैसे वक्त गुजारा, अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, और आने वाले वक्त के लिए आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं? अभी आपके किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें अगले साल 1.5 साल में देखने को मिलेंगे? ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहूँगा। मैं शुरू कर लेती हूँ। मैंने तो ये टाइम इस तरह गुजारा है कि बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं, रीडिंग्स की हैं, और बच्चों की कहानियाँ सुनाई हैं फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और अभी आगे भी जो मुझे ज़्यादा काम आ रहा है वो टेलीविज़न और फिल्म से ज़्यादा वेब कंटेंट का आ रहा है, और उसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये जो Z5 है, स्टार्स प्ले के नाम से, उन्होंने पता नहीं अब क्या नाम रखा है, उनका बहुत काम आ रहा है, which is actually, जब आप आई थिंक जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जहाँ पे इग्नोर हो रही हैं, एंड पीपल आर वर्किंग टुगेदर irrespective of what nationalities or which passports they hold, तो ये काफी मिले जुले उसके अंदर क्रिएटिव लोग हैं। और अयाज भाई आप बताएं। अभी तो एक सीरियल की शूट कर रहा था मैं, वो चल रही है, फिर बीच में कोविड का जब गैप आया था 2 months का, तो तब फिर मैं यूट्यूब की तरफ थोड़ा सा चला गया था, यूट्यूब ट्राई करके देख रहा था। फिर गेमिंग तो मेरा शौक है, तो अभी क्योंकि मेरा बेटा है अभी 1 साल और 1 महीने का, तो वो जो मुझे 2-3 महीने का क्वालिटी टाइम मिल गया ना, क्या जो कि हमें नहीं मिल पाता बच्चों के साथ, तो वो एक बड़ा एक अच्छा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया मेरे लिए, कि बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। उसके अलावा अब ये है कि दोबारा से चीजें रिज्यूम हो रही हैं, दोबारा से गोइंग बैक टू नॉर्मल, सो दोबारा से शूट, एक प्रोजेक्ट की तो स्टार्ट हो गई है, बाकी दूसरों की कॉल्स आने का वेट है, तो जैसे जैसे होती जाएंगी तो काम दोबारा बैक ऑन ट्रैक। बाय द वे, जामी भाई की एक मूवी है, वो भी करेंगे हम फिर जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर करेंगे। अच्छा, हाँ, मुझे आपकी कुर्सी जरा पसंद आई। अरे थैंक यू सो मच।
ये जब 4-4 5-5 घंटे बैठ के गेमिंग करते हैं ना, तो यही कंफर्ट देती है। दूसरी कुर्सियों पर नहीं मिलता। शबीर साहब, शबीर साहब, आवाज आ रही है आपको? शबीर अंकल, शबीर साहब आवाज आ रही है आपको? शबीर साहब के साथ हेडफोन्स नहीं लगे हुए शायद उनको। जी मैं सुन फरमाइए सर। शबीर साहब, हाँ, पिछला 4 महीने का वक्त कैसे गुजारा, कोरोना का वक्त, और अभी क्या कर रहे हैं आप प्रोफेशनली? मैं समझ गया कि आप कोरोना से मुतालिक पूछ रहे हैं। भाई मसला ये है कि कोरोना मैं नहीं, आप नहीं, पूरी दुनिया ही इससे भुगत रही है, लेकिन एसओपीज का हम ख्याल रखते हुए उससे थोड़ा महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ऐसा है कि मैं काम बहुत ही सेलेक्टेड करता हूँ। इन द मेन टाइम अभी एक कमर्शियल था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा भाई एसओपीज का पूरा ख्याल रखना है, फासला रखना है, आपका जो आपका स्टाफ कम होना चाहिए, बहुत सारी बातें थी। उन्होंने मेरी एग्री कर ली, मैंने जाकर फिर वो कमर्शियल शूट करवा दिया। उसके बाद एक सीरियल का मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, मैं कहा भाई फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एजिड आदमी हूँ, इसलिए कि मैं इससे पहले मुतासिर होऊंगा, तो इस वजह से मैंने उन्हें एक्सक्यूज किया। और मेरी बात समझ गए, तो मेरी तो यही दुआ है कि भाई हम सब, आप, हम, दुनिया इस कौर के कहते हैं ना कि जुल्म से निकल जाएं, आजाद हो जाएं और वो पंछी बने उड़ते फिरे मस्त गगन में। मैं तो ये चाहता हूँ। वाह, हमीद साहब। जी सर, आपकी आवाज कट गई थी जी। हाँ जी, मैं 4 महीने तो मैं एलए में हूँ, तो एलए में तो बहुत सख्त था सब कुछ, और हम घर पे ही बैठे थे, जैसे आप लोग इंडिया में बैठे थे। हमारे पाकिस्तान में बड़ा रिलैक्स था माहौल, और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो रहा था। लेकिन एलए में मेरे कुछ ही दोस्त हैं, एक ऐश गुप्ता हैं जो कि फोटोग्राफर हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक है, अमेरिका में बहुत ही बड़ा उनका सेटअप है, तो उनसे जाके रोज एक गपशप होती थी कि वो और मैं क्वारंटीन थे, एक ही तरह के लोग थे हम, और उसमें भी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। वो बड़े नॉलेजेबल हैं, उनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती थी, हम मिलके शेयर करते थे रोज जो भी कुछ हो रहा होता था वायरस के हवाले से, या कोई मैसेज मैं फेसबुक पे शेयर करता रहता था अपने शहर में, क्योंकि मेरा शहर की जो कंडीशन है हेल्थ के हवाले से वो बहुत ही कमजोर है, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीजें नहीं है। तो जितना मैं लोगों को अपनी तरफ से अपनी बता सकता था, मेरी कोशिश होती थी कि मैं फेसबुक पे मैसेज कर दूं या शेयर कर दूं कोई चीज, ताकि लोग कुछ सीख सकें, जबकि शुरू में कुछ लोगों को पता ही नहीं था। अब तो फिर भी ऐसे हालात हैं कि हम इस वायरस के बारे में इतना तो जानते हैं कि इसको एंटीबायोटिक्स तो नहीं, कम से कम किसी तरह इसका इलाज कर सकते हैं। उस जमाने में तो कुछ पता ही नहीं था। कहते हैं जी, जो उस महीनों में, शुरू के महीनों में जिनको पता नहीं था, वो ज्यादा खतरे में थे बनिस्बत आज के, क्योंकि आज थोड़ी हम अवेयर हैं कि इससे डील कैसे करना। बाकी अब जो हमारा प्लान फिल्म के हवाले से और सीरीज या टीवी के हवाले से, वो दोनों जामी साहब को जो है मैं बड़ी कोशिश मोटिवेट करने की कर रहा हूँ कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें, हम एक पीरियड पीस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, और मुश्किल इसलिए क्योंकि जिस जगह पे हम करना चाह रहे हैं वहाँ पर जाना, और वहाँ पर यानी कोई हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है कि वहाँ पर सब कुछ अरेंज करना इतना आसान नहीं है, और वो हम जिन लोगों के साथ करना चाह रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। और एक 1880s में रख के हम एक फिल्म करना चाह रहे हैं, तो कमिंग ईयर में इंशाल्लाह देखें 2021 में, अगर 2020 गुजर जाता है, दुआ करें गुजर जाए, गुजर नहीं रहा वैसे 21 आता है तो हम ऐसे ना इसकी एक्सटेंशन हो जाए, हो सकता है हम इसको हिस्ट्री से डिलीट कर दें। 2020 आया ही नहीं था कभी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होगा डिलीट करना। अच्छा, मैं रह गया हूँ। अच्छा सर, कोविड में व्हाट वी वर डूइंग, वैसे तो जैसा माहौल होता है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। मेरा तो दिमाग बंद हो गया था बहुत। हमीद शेख साहब को पता है, बड़े दिन से वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अभी भी हिंट दिया है कि अगर मोटिवेट कर दें जामी को। बट मेरा 2-3 मसले चल रहे थे, पर्सनल थे कुछ, उसमें कनेक्टेड था मी टू भी। तो हमारे तो 1 साल से एक बैटल चल रही है, कुछ केसेस हम लड़ रहे हैं, कुछ लड़कियों के हैं, और हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि मतलब विक्टिम्स औरतों के साथ क्या होता है। तो जैसे हम बाहर आए, सामने आए लड़ने के लिए, तो वो जो बैकलैश आया उसका मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। वो इतना ज़्यादा हो गया कि
इस वक्त आई एम सिटिंग इन बॉस्टन राइट नाउ, मुझे मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो दैट वाज अभी इस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क में अगर नहीं हूँ, अपने लोगों से कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरे लिए आइडियाज आना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि मैं इस मुल्क की पैदावार नहीं हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ उसमें। तो मैं अभी उसी शौक से गुजर रहा हूँ, और उसके बीच में ये हो गया, कोविड हो गया, तो मैं वापस भी नहीं जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि somehow we are connected to the industry but in a different way, कि right now we are working with a lot of activists कि किसी तरह मी टू का इनर्शिया दोबारा जनरेट हो जाए पाकिस्तान में, जो कि हो नहीं पा रहा है सही तरह पूरा, और लोग डर जाते हैं, केसेस कर देते लोग। तो अभी हमारा उस पर चल रहा था, तो अभी फिर देन वी हैव रियलाइज कि ये एक आदमी या 2 या 4 लोग नहीं कर सकते, इसके लिए सबको अवेयर करना को। तो वो हम जनरेट कर रहे हैं कि सब लोग आ जाएं किसी तरह, बजाय एक इंसान अकेला लड़े और फिर वो फंस जाए। एंड देन हमेशा एक साथ जो बात कर रहे हैं वो है, देन 2 मेरी अपनी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं समाव अगर हो जाए। एंड या बेसिकली अभी तो यही है। जी, मैं आपकी खबरें सुनता रहता हूँ, न्यूज़ में पढ़ता रहता हूँ, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपके केसेस के बारे में पढ़ता रहता हूँ, और मैं आप सबकी सेहत की दुआ करता हूँ, आपकी परिवार, आपकी फैमिली सब सेहतमंद रहें, खुश रहें, और हम वैसे ही कनेक्टेड रहें। एटलीस्ट जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ के, आपके यहाँ के, और भी दूसरे मुल्कों के साउथ एशिया में, आपस में हम कभी कभी एक बार हम ऐसे मिल सकें, एटलीस्ट डिजिटली ही मिल सकें, तो हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगी, हमें काफ़ी हिम्मत मिलेगी, और अच्छा आगे कर सकेंगे। जामी, आपसे रिक्वेस्ट है कि फिल्म स्क्रीनिंग के बाद अगर आप थोड़ी फिर आ जाएं क्वेश्चन आंसर के लिए, अगर आपके पास आप कंफर्टेबल हैं। नो सर, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो फिल्म को शुरू करने के पहले अगर आप 1-2 लाइन बोल के इसको रिप्रेजेंट कर दें फिल्म को, तो हम शुरू कर देंगे। सर दोबारा बोलिएगा, आपकी ऑडियो कट रही है। तो अगर आप रिप्रेजेंट कर दें 1-2 सेंटेंस में, तो हम फिल्म आगाज कर देंगे। ओह गॉड, this again a pitch is I think it's very important to understand किसी भी ज़माने में आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रगल है, बहुत सिंपल सी फिल्म है। इट्स अ स्ट्रगल अबाउट अ फैमिली जो कि एक ऐसे टाइम से गुजर रही है जो कि पास्ट में फंसी हुई है एंड फ्यूचर में फंसने वाली है। सो एंड इसके बीच में एक माँ है जो कि दोनों चीज़ों को रोकी हुए के पास्ट को भी सही कर दे और फ्यूचर को भी सही कर दे किसी तरह, और वो जिंदा नहीं है। तो दैट इज द कोर ऑफ द फिल्म, कि किस तरह अपने हस्बैंड को पकड़ के रखे, जाके हस्बैंड जो फादर है अपने बेटे को बचा के रखे, एंड बेसिकली जैसा करोगे वैसा भरोगे। दिस इज द थीम ऑफ द फिल्म। तो बाकी मेरे एक्टर्स और मेरे आर्टिस्ट आपको बताएंगे कैसी फिल्म, तो ऑडियंस देख के बताएगी कैसी फिल्म है। एग्जैक्टली। बहुत खुशी हुई आप सबों से मिलके। अगर आप में से कोई फिल्म के बाद दोबारा आ सके क्वेश्चन आंसर के लिए, बहुत खुशी होगी। और हम अभी फिल्म का आगाज करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू। और बहुत अच्छा वक्त। थैंक यू। So we will start the film. बहुत इंटेंस ड्रामा है, और it also gives us hope at the end. It shows us light of hope, rays of hope at the end. मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता था कि लैंड माफिया को लेके और भी फिल्में बनी हैं, और अच्छी इंटेंस फिल्में बनी हैं। मेरे ख्याल में गॉडफादर में भी लैंड माफिया एक थीम था, सेंट्रल थीम था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इस सब्जेक्ट के बारे में? जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी 2 बीघा जमीन बनी थी बलराज साहनी की, तो लैंड माफिया को लेके काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। सर ये टेक्निकली इस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, ये फिल्म होनी तो लैंड माफिया पे नहीं थी, लेकिन जैसे हमने बोला था कि वो जाहिर उल्ला खान के कैरेक्टर के ऊपर रखी हुई थी हमने, कि एक बंदा है जो घर में रहता है। देन वन डे माय वाइफ सेड के मतलब एक बंदे की कहानी जो कमरे में घर में रहता है। मैंने ये तो इतने ही पैसे हैं हमारे पास, क्या करें? और देन शी सेड ये डू समथिंग
big, कुछ exciting तो हो. Then I was connected with Balochistan. हमारा film school भी उसके बाद start हुआ. काफ़ी चीज़ें हैं. तो ऐसे ओके लेट्स ट्राई. तो हमने फिर ट्रेन की जर्नी ली ना. हमने कुछ पढ़ा उसके बारे में, ये कुछ चक्कर चल रहा है. Then ट्रेन कराची से कोयटा तक की ट्रेन ली. That's when we understood the pain. एंड ड्राइवर के साथ बैठ के भी आगे, देन अंदर भी बैठ के. उस वक्त तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी. ये लिबरेशन मूवमेंट की बहुत ज़्यादा टेंशन थी. मतलब पूरी ट्रेन आर्मी से भरी हुई थी. हम 4-5 लोग थे बस. अच्छा. और जी बहुत ही सख्त हुआ. एंड तो वहाँ गए. देन कोयटा से आगे तो वहाँ जब गए तो दैट वाज सैड कि कितने बड़े लोग थे ये लोग, ये ट्रेन स्टेशन मास्टर्स. सर ये टॉक अबाउट मास्टर्स की डिग्री लिए हुए, मतलब पढ़े लिखे लोग, और मतलब बच्चे उनके नंगे रोडों पे घूम रहे थे. मतलब इट वाज ब्रूटल. और फिर भी कुछ लोगों ने मिल के बचाया कि वो लकड़ियाँ छुपा ली घर के अंदर, कुछ चोरी ना कर ले. और छोटी छोटी चीज़ें, लालटेन रखे हुए थे घर के अंदर छुपा के. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब कोई होप नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकर वो बचा रहे थे. तो वो थीम और स्ट्रांग होती गई हमारे लिए जब हम होमवर्क करने गए. तो वो तो सर जाके मालूम होता है, अंदाज़ा हुआ कि मतलब सबसे बड़ा गेम दुनिया का लैंड ही है. वैसे देखा जाए दुनिया की ज़्यादातर वॉर्स लैंड पे ही होती हैं. Exactly. लैंड के लिए होती हैं, या तो लैंड के नीचे जो ऑयल है उसके लिए होती हैं, या व्हाटएवर जो. तो वो वहाँ भी जाके यही हुआ कि पावर प्लेयर्स ने जिस तरह वो मतलब बनी हुई पटरी थी अफगानिस्तान तक की, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेशंस ऐसे वीरान पड़े हैं. इतना दुख हुआ था देख के कि बस फिर हमने कहा चलो जो भी है करते हैं इसके ऊपर ना. तो So I realized that this your story is based on a true incident which you mentioned happened in 81, 82. Yeah, so something like that. Okay. So did you do some research about the incident, or you read about it somewhere? हम लोग किला सैफुल्ला तक गए, जहाँ तक ट्रेन की पटरी थी और उससे आगे भी थी. तो वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जो लालू थे फिल्म में, जो विलेन है, वो उस वक्त वहाँ पे थे. वो एमएनए हो चुके थे. अच्छा. जी. तो वो हमारे शूट पे भी आ गए थे. उन्होंने बंदे भेजे थे अपने के, यार ये लालू का नाम हटाओ. अच्छा. तो लालू ही नाम था विलेन जो है. जी बिल्कुल. अच्छा. तो वो मशहूर है लालू. वो लिटरली वो द लालू. इट वाज नोबडी, एंड देन ही बेच के. एंड दिस इज ब्रिटिश स्टील सर. इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टील स्टिल. वो बेची, और मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की. तो रिसर्च बहुत हुई थी. और फिर बाद में बहुत लोग आए. फिर डॉक्यूमेंट्री मिल गई हमें, जो कि मेरे मोर के पेज पे भी है. मैं लिंक भेजूंगा आपको कि जब वो काट रहे थे ट्रेनों की पटरियों को निकाल रहे थे, तो वो भी शूट हुआ. ओके. तो उसकी डॉक्यूमेंट्री पे हमने प्रोड्यूस की थी. 30 मिनट की थी, 25 मिनट्स की थी. देन उसके बाद जब फिल्म कोयटा में प्रीमियर हुई, तो उसके बाद हमें न्यूज़ आई कि 1 साल बाद कि वो पार्ट वो फिर ऑन कर रहे हैं. अब उन्होंने हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने प्लान कर दिया था कि वी विल स्टार्ट अगेन किला सैफुल्ला का पूरा रूट दोबारा से. बट इसकी परमिशन मिलना भी बहुत बड़ी बात है. इस फिल्म को बनाने के लिए वो आप सेंसिटिव एरिया में गए, एंड गेटिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट वुड हैव बीन अ नाइटमेयर फॉर यू. सर उसमें नाइटमेयर ये हो गया था कि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें उठा लिया गया था कि उस वक्त उस टाइम पे तालिबान लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था एट दैट टाइम इन दैट एरिया. सो वी वर टोल्ड डोंट गो देयर, एंड सो वी डिड. दे पिक्ड अस अप our government. अच्छा. And then they realized अच्छा चलो बात खत्म करते हैं, आप जाएं शूट करें. But it was very interesting कि we saw them over there also, where the station house is, the main. They were living inside there. They means Taliban. Yes. That was very interesting. And मुझे अभी भी दिन याद है कि हम लोग बाहर खड़े थे. हमने कहा यार इनको जाके कौन बोलेगा कि यार we have a permission to shoot because it's the government of Pakistan property.
and this guy in a black turban उसने कहा क्या भाई, मैंने कहा हमें शूट करना है यहाँ पे, भाई आप लोग जाओ, and they went in 1 minute they went. अरे वाह, But हाँ बड़े and वो आते थे, देखते थे, खड़े होकर देखते रहते थे हम लोग क्या करके आ रहे हैं, और we had like 15-20 लड़कियां भी थी, जीन्स में घूमती रहती थी, बट हमें तो कुछ नहीं बोला उन्होंने. I don't know how come, but that was a very interesting experience. सर एक बात बताएं, व्हाट इज योर टेक अबाउट वैल्यू ऑफ लॉयल्टी? बग्गू का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमें, और आज के दौर में जो वैल्यू ऑफ लॉयल्टी है वो कम होती जा रही है. और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी देयर आर सम रेसेस व्हिच हैज ट्रेडिशनली बीन नोन एज अ वेरी लॉयल रेस. लाइक हमारे यहाँ जो पहाड़ी लोग होते हैं बहुत दिल के साफ होते हैं, लॉयल होते हैं, एक बार कमिटमेंट करके सारी जिंदगी एकदम जान लगा देते हैं. तो वो चीज मुझे बग्गू के कैरेक्टर में नजर आई. तो क्या वहाँ भी कुछ ऐसे रेसेस हैं आपके यहाँ जो इस तरह का उनको ट्रेडिशनली उनको ऐसा माना जाता है कि बहुत लॉयल होते हैं, जैसे पश्तो? एक्चुअली जितने ट्राइबल कल्चर्स है ना, उनकी रूट्स अभी तक वैसी ही हैं, दुनिया भर में जैसे रूट्स होती हैं. एक पहाड़ी वाले इलाके में जो पहाड़ी के लोगों की होती है, बिल्कुल वैसी रूट्स हैं दुनिया भर में. एंड बग्गू बाबा was a character design थोड़ा सा ओवरली बनाया हुआ है, आप नोट करें, बट ऐसे लोग हैं जो कि पुराने. एहसानुल्लाह was चीता कब, and Wahidullah was a grizzly bear, so he's slow and he walks like that. And the villain was the snake, the cobra. Okay. So that's how he comes inside the house, checks. That's how we picked up all their characteristics. So it was interesting. So what is next from Jami's table? What is germinating in your mind? सर दो तीन चीजें चल रही हैं. एक चीज पे मैं थोड़ा सा हल्के जोन इन होता जा रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि जो मी टू मूवमेंट है वो पाकिस्तान में, उस पर कुछ हुआ नहीं है. एंड इट रियली रेडी टू बर्स्ट, बट उसके ऊपर लिड लगाकर रोका हुआ है उसको. तो दैट्स वन थिंग इज वेरी पर्सनल एंड ऑटोमेटिकली चीज़ें आती हैं. दैट्स आवर फिलॉसफी कि जो चीज़ दिल के करीब हो बस उस पर काम करो. अगर दिल के करीब कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं करो, बैठ जाओ. तो दैट्स व्हाई अभी तक कोई काम नहीं कर रहे थे हम. तो बट दिस नाउ इज समथिंग ग्रोइंग इन आवर हार्ट के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 2-3 लेवल है तो खाली ये सिटी का मूवमेंट ना बन जाए, क्योंकि इश्यूज ग्रास रूट पे भी बहुत है जो कि ट्विटर और फेसबुक पे नहीं आते कभी भी, जो कि इश्यूज इंटरनल नॉन अर्बन एरियाज में होते हैं, वो हैं. देन आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, आई एम अ फिल्म डायरेक्टर. तो ये होगा कैसे? एंड अमूमन लोग आजकल मैं देख रहा हूँ इस चीज़ में हेल्प नहीं कर रहे हैं जितना करनी चाहिए थी. इवन मैंने इंडिया में देखा थोड़ा सा ना बेचारी आई और देन सब साइड लाइन कर दिए गए. वापस जितने लोग एक्यूज थे वो दोबारा आ गए इंडस्ट्री में. समहाउ हमारे में यही हुआ है कि जितने लोग एक्यूज थे एटलीस्ट थोड़ा सा आप टाइम के लिए विक्टिम्स को भी आने दें, उनकी सुनने थे. वो इतना ब्रूटल हो जाता है कि वो आइंदा फ्यूचर में लोग डर जाएंगे कि हम तो कभी नहीं बोलेंगे भाई. तो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1-2 साल हम लोग इसी को टाइम दे दें. Then we will move on because it takes too much time and emotions, and it really hurts your soul when you're connected to this. Right. So you want to give time to one thing at a time. You don't want to do 2 parallel things. Actually, I used to do a lot of things. मतलब कैमरा कंपनी भी है, कमर्शियल भी थे, म्यूजिक वीडियो भी थे, फिल्म भी थे. Then I realized when we start doing more, when we start writing, I stopped doing music videos. And not because I want to focus, I want to create a vacuum. क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, छोटा से भी काम करते हैं ना, तो आपकी मशहूरी हो जाती है. वाह 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 सब वाह वाह करते हैं. Then you don't have to do a lot of good work because सब वाह वाह हो रही तो यार क्यों करें. तो what I did was 2-3 साल के लिए मैं हट गया. और उस ज़माने में फेसबुक भी इतना नहीं था या था, I don't know, लेकिन सो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ दिल में कि यार मेरी तो कोई बात ही नहीं कर रहा पाकिस्तान में, तो फिल्म बनाते हैं, यहाँ कुछ करते हैं. तो ये इस तरह that's how we work. So now we are doing it ulta. We are always on Facebook, Twitter, trying to activate people. Yes. But somehow क्या बोलना चाहिए, हमारे अपने दोस्त ही
साथ नहीं देते, तो बेहतर है कि आदमी फिल्म बना ले जो कि आपको आता है करना। We thank you for giving us so much time and creating this artwork in cinema, and we hope that you keep creating such artwork, more of such artwork for us, all of us, to rejoice and go deep within ourselves. And it's watching your film is an experience. It's not just a time pass. It's an experience, and it's a journey within our own self. Watching each frame of your film. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. This is